नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा, नारेबाजी और मोदी सरकार पर आरोप मढ़ने वाली कांग्रेस पार्टी का अब दोहरा चेहरा बेनकाब हुआ है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता जिनको जब भी मोदी का विरोध करना हो तो वो अडानी का राग अलापना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरी ओर बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी शासित राज्य तेलंगाना से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा बेनकाब हुआ है। दरअसल बड़ी खबर तेलंगाना से है, जहां पर जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने राज्य में अडानी ग्रुप का स्वागत किया है और गौतम अडानी के बेटे और अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड के सीईओ करण अडानी से हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया है कि अडानी ग्रुप तेलंगाना में डेटा सेंटर और साथ ही एरोस्पेस पार्क जो है वो स्थापित करेगा। यानी साफ है कि तेलंगाना में अडानी ग्रुप निवेश करने की तैयारी कर चुका है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। एक तरफ लगातार हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी, जब भी उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना हो तो वो अडानी ग्रुप पर हमला बोलते हैं। As far as the Bharatiya Janata Party Telangana is concerned, we welcome any investments in the state because Modi's government has always been telling that development is the main agenda. All states should develop. Bharatiya Janata Party ruled states, non-Bharatiya Janata Party ruled states also. So as far as Bharatiya Janata Party Telangana is concerned, we welcome that move. But as far as Mr. Rahul Gandhi and the Congress leaders are concerned, whenever Adani Group or Ambani Group, they meet the Bharatiya Janata Party ruled state, the chief ministers, including the Prime Minister and Amit Shah ji, the just Home Minister, these people are very, very critical. They criticized that Adani, Ambani, Modi and Amit Shah are sailing in the the same boat. They are one together. They are together. They have investment opportunities also. When the same people, when they meet the Congress ruled states, their mouths are shut, no one is talking, everyone is mum. This shows that the Congress hypocrisy. And we, the Telangana Bharatiya Janata Party demands an explanation from none other than Mr. Rahul Gandhi, who has been instrumental and then talking and the criticizing day in and day out. This is just before the elections. So the development is the main agenda. We feel that in Telangana, more and more development should happen, more and more industries should come, so that investments will come, so that our people will get more job opportunities, our state economy and then revenue will increase. We welcome that. We are very, very positive on that. But as far as the Congress party is concerned, they are negative, they are narrow-minded, and they are only skeptical that only Ambani, just Ambanis and Adanis are hand in glove with only the Bharatiya Janata Party, the leaders. Ambani and Adani are investors. Adani Group has invested all over the country, and if they are coming here, we welcome, but we don't need any criticism about it. But we need an explanation from Mr. Rahul Gandhi. He has to answer to the questions what we are demanding. और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी के लिए सरकार चला रहे हैं, सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं, पूरा देश अडानी को बेच दिया है। इस तरीके के आरोप जो है वो राहुल गांधी लगाते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अब भी अडानी का उसी तरह से विरोध करेंगे जिस तरीके से वो पहले करते आए हैं। तेलंगाना जिस राज्य में हाल ही में कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है और सत्ता पर काबिज होते ही कांग्रेस पार्टी ने निवेश के लिए गौतम अडानी ग्रुप जो है दरअसल उसे न्योता दे दिया है और
और उसी उद्योगपति को निवेश के लिए वो आमंत्रित कर रहे हैं जिस उद्योगपति का वो विरोध करते रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी से कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर गौतम अडानी का विरोध करती है, अडानी ग्रुप का विरोध करती है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो वहां पर भी उन्होंने तमाम जो निवेश है वो अडानी ग्रुप ने उन राज्यों में किया है। तमाम जो प्रोजेक्ट हैं वो साइन हुए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार पे। और अब तेलंगाना में सत्ता पर काबिज होते ही तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं नए रेवंत रेड्डी, उन्होंने दरअसल जो गौतम अडानी के बेटे हैं करण अडानी, उनसे मुलाकात की है। मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई है जिसमें वो काफी मुस्कुराते हुए गौतम अडानी के बेटे करण अडानी, जो कि अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के CEO हैं, उन्हें दरअसल इनवाइट कर रहे हैं कि आप निवेश करिए। और जाहिर तौर पर डेटा सेंटर एरोस्पेस पार्क जो है वो स्थापित करेगा अब अडानी ग्रुप, इस पर भी मुहर लग चुकी है। और जैसे ही ये खबर सामने आई है तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पर वो तस्वीर हर किसी ने देखी है कि किस तरीके से चाहे फिर वो संसद में हंगामा करना हो अडानी के मुद्दे को लेकर या सरकार पर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाना हो। और इसी तेलंगाना में हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के खिलाफ नारेबाजी हुई है। वहां पर सरकार का विरोध करते हुए अडानी के पुतले फूके गए हैं। लेकिन आज तस्वीर उल्टी है। आज राज्य में कांग्रेस पार्टी के शासन है और वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री आज अडानी ग्रुप को निवेश के लिए इनवाइट कर रहे हैं। और यही वजह है कि सूर्य प्रताप सिंह की ओर से एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि गौतम अडानी के बेटे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, फूलों का गुलदस्ता दिया और डेटा सेंटर और एरोस्पेस पार्क में इन्वेस्ट करने का करार भी कर दिया। अब कोई नहीं कहेगा कि तेलंगाना अडानी को बेच दिया, क्योंकि लगातार इस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं कि दरअसल पूरा भारत जो है वो अडानी को पीएम मोदी ने बेच दिया। दो उद्योगपति मित्र जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, यानी अडानी और अंबानी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है। लेकिन आज उसी राहुल गांधी से सवाल देश की आम जनता कर रही है और ये कह रही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। यानी राजनीतिक तौर पर आप अडानी का विरोध करते हैं, लेकिन जब आप फायदा देखते हैं तो उसी अडानी को आप इन्वेस्ट के लिए वहां पर बुला रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं और इस तरीके से वहां पर अडानी ग्रुप के साथ ये प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं। तो लगातार तमाम लोगों ने इस पूरी मुलाकात को लेकर और इस निवेश को लेकर सवाल उठाए हैं। कई जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि राहुल गांधी का ऐसा कोई दिन नहीं गया जब वो अडानी पर हमला नहीं करते। मुद्दा चाहे कुछ भी हो, वो गौतम अडानी से उसे जोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि चूंकि वो भी गुजरात से हैं तो पीएम मोदी उन्हें ज्यादा दरअसल सारे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं और तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि दरअसल अब कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री अडानी ग्रुप से मिल रहे हैं, जिसका नेतृत्व गौतम अडानी के बेटे करण अडानी कर रहे हैं। तो अब राहुल गांधी को जवाब देना होगा, ये भी तमाम लोग कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का नारा था आम आदमी बेहाल, अडानी मालामाल। इस तरीके से लोग याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने नारा दिया था और इस तरीके से लगातार जो है बयान सामने आ रहे हैं। अब क्या बोलेंगे राहुल गांधी? रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना बेच दिया अडानी को, इस तरीके से भी लोग सवाल लगातार उठा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी अब मुश्किल में फंस चुकी है और जवाब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से तेलंगाना बीजेपी के नेता भी मांग रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी केंद्र स्तर पर अडानी का विरोध करती है, लेकिन जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर निवेश की योजना अडानी ग्रुप के साथ ही बनाई जा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये साइन किए गए हैं एरोस्पेस और साथ ही
जो डाटा सेंटर के प्रोजेक्ट हैं इस पर साइन हो चुका है और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी दरअसल अडानी के साथ समझौते कर रही है, लेकिन जवाब राहुल गांधी से भी मांगा जा रहा है कि किस तरीके से पीएम मोदी को जोड़कर अडानी ग्रुप के साथ वो निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी को बनाते रहे हैं। लेकिन अब अडानी ग्रुप को रेवंत रेड्डी सरकार सब्सिडी देगी, ये साफ तौर पर खबर सामने आई है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ और गौतम अडानी के बेटे करण अडानी ने 3 जनवरी को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद अब राजनीतिक भूचाल भी शुरू हो सकता है। जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हर रोज अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करती रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।